रूल्स क्या है MPPSC के? एग्जाम वाज फॉर असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन It was 21. It was conducted for which post? असिस्टेंट मैनेजर। इन्होंने क्या किया, पहले दूसरा आंसर लगाया, फिर उसमें वाइटनर लगा करके वाइटनर नहीं लगाया, सर वाइटनर नहीं लगाया, इरेजर किया, जो भी किया, रबर इरेजर। आपके जब एडवोकेट बहस कर रहे हैं तो आप इरेजर करके इन्होंने उसको दूसरे को आंसर कर दिया। आई हैव नॉट यूज्ड वाइटनर। आपने इरेज कैसे किया? पेंसिल से तो करना नहीं था, नहीं डॉट पेन था ना। डॉट पेन था तो रबर इरेजर से इरेज किया। जो कॉपी जांचना थी वो स्कैनिंग मशीन से जांचना था, कोई मैनुअल नहीं जांची गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ 50 यस, के मार्क्स इनको नहीं दिए गए, नहीं दिए गए क्योंकि और अगर वो मार्क्स दे दिए जाए जी तो शी विल बी क्वालिफाइड। शी विल बी क्वालिफाइड। Lord, in this petition, now only two questions required to be heard. One is regarding PSC has not given marks for question number 41 and 50 on the ground that petitioner has first attempted two wrong answers by darkening the circle, then erased them, and thereafter attempted correct answer. And other questions regarding correctness of the answer of question number 20. Will you kindly peruse the order of this Honorable Court of 3rd March? Yes. In this order, this Honorable Court has observed it is correct that in the OMR sheet, the petitioner first attempted two wrong answers by darkening the circle, then erased them, and thereafter attempted the correct answers. Apart from correct dark circles, two circles are also shown as attempted answer, which is not permissible according to the respondent PSC. Prima facie, the petitioner has attempted the correct answers by darkening the circle. Whether the petitioner would be entitled for marks of these two disputed questions, these two disputed answers, same shall be decided at the time of final hearing of the writ petition. At present, the petitioner is permitted to appear in the interview. However, the result shall not be declared without leave of this court. And my lord, petitioner will not claim any equity. ये भी लास्ट पैरा है, लास्ट पैरा by appearing in interview, his result has been withheld. no, my lord, then the result of the interview was also got produced in the court. Only for the perusal of the court, honorable court. And she has obtained 30 marks in the interview out of 50. How do you know? Out of 50. No, how do you know the interview marks? Millard, it was the envelope was produced by PSC before this honorable court. It was produced before the court. Before the court. Before the How court. how do you know the interview marks? Millard, and then they that रूल्स क्या है MPPSC की? अगर डार्कनिंग करके इरेज करके अगर किया है जी, इसमें सर ये इनके है, काइंडली सी दी एडमिट कार्ड एनेक्चर असिस्टेंट मैनेजर यस पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर यस hospital administration. हॉस्पिटल एडमिट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एग्जाम वाज फॉर असिस्टेंट मैनेजर एग्जामिनेशन इट वाज 21. It was conducted for which post? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर। That's why. असिस्टेंट मैनेजर। क्या आपका क्या स्टैंड है मिस्टर खरे? सर ये वो जो ये डार्कनेस का बोल रहे हैं, काइंडली सी दी नेक्चर P14 at page 11 of the petition. Page 11 of the petition. P14.
14 14 तो 11 तो नहीं हो सकता, P14 इसमें 14 ही लिखा हुआ है, पेजिंग गलत है। P14 है एडमिट कार्ड है, रिजॉइंडर का है, रिजॉइंडर के साथ पेश किया, सॉरी रिजॉइंडर सब सुनेंगे वैकेशन के बाद। P14 इसमें लिखा हुआ है, P14 के 12 नंबर पेज पे एक मिनट, OMR रीजॉइंडर, हाँ रीजॉइंडर पेज पेज 11 P14 11 P14 इसका बैक साइड देखें सर, पेज 12 पे पेज 12 पे हाँ, क्लास नंबर 7 and 8 is relevant. 7 provides OMR शीट में प्रश्न पत्र के सेट पर गोले को काले रंग से ध्यान से भरें। सेट का गोला ना भरने पर या सही गोला ना भरने पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। समस्त कार्य काले डेट पेन से ही करें। OMR शीट में सही उत्तर के गोले को भी काले डॉट पेन से ही भरें। Then 8 your lordship, OMR शीट पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अवश्य करें। OMR शीट पर व्हाइटनर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। जस्ट समझने दें। आपका क्या कहना है? आपका ये कहना है कि हमने पहले, इन्होंने क्या किया, पहले दूसरा आंसर लगाया, फिर उसमें व्हाइटनर लगा करके, व्हाइटनर नहीं लगाया, सर व्हाइटनर नहीं लगाया, इरेजर किया, जो भी किया, रबर इरेजर। आपके जब एडवोकेट बहस कर रहे हैं तो आप इरेजर करके इन्होंने उसको दूसरे को आंसर कर दिया। अब ये जो काफ़ी जांची गई थी वो मशीन के द्वारा जांची गई थी। काइंडली सीधी रिप्लाई ऑफ दी रिप्लाई एडिशनल रिप्लाई डेटेड 17/10/2। मिस्टर क्षीरसागर, हाँ ये एडमिटेड है कि आपने इरेज करके हाँ रबर आप उसको इरेजर, डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। but that was not prohibited. What was prohibited was the use of whitener. अब ये The only prohibition was regarding use of whitener. I have not used whitener. आपने इरेज कैसे किया? पेंसिल से तो करना नहीं था, नहीं डॉट पेन था ना, डॉट पेन था तो रबर इरेजर से इरेज किया। और ओरिजिनल है। इसमें सर इसमें जो मशीन, जो कापी जांचना थी वो स्कैनिंग मशीन से जांचना था, कोई मैनुअल नहीं जांची गई थी। इसमें हमने रिजॉइंडर के जो 17/10/2023 को पेश किया है, इसके पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है हमने, बिकॉज द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एडिशनल आप पढ़ रहे हैं कि ये अपने एडिशनल रिप्लाई पेश किया है 17/10/23 को एडिशनल जी, 17/10/23 को, इसके पेज नंबर 3 पे ये 2 के लास्ट लाइन से शुरू होता है। मिसलीडिंग एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन वाज कंडक्टेड। क्या पढ़ना है? पैरा पेज नंबर 2 का लास्ट लाइन, यस। misleading and cannot be accepted because the written examination for the post in question was conducted offline method and OMR sheet was checked by optical mass reader scanning machine, and thus if the circle gola will not be clear, the optical mark reader scanning machine cannot catch the circle क्या gola। मिस्टर खरीफ OMR है क्या? ओरिजिनल OMR है? ओरिजिनल तो नहीं होगा सर, बुलाना पड़ेगा। OMR Original OMR sheet was produced before this honorable court in sealed envelope. An honorable court has perused there. And my lord, जस्ट this answer was evaluated by the OMR scanning machine, and that is why minus marking has been given. On the ground that first you have attempted wrong questions,
wrong answers and then you have attempted the correct answers. सर अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा सबमिशन ये है कि काइंडली सी द रिलीफ क्लास ऑफ द पिटीशन, Yes, काइंडली सी द रिलीफ क्लास ऑफ द पिटीशन yes. at page 10 of the petition. First prayer है इनकी to modify and rectify the impugned result dated 13/10/2023 in Excer P9 after properly applying the 30% minimum qualifying criteria for EWS category candidate and issue fresh additional result of OMR sheet based examination of assistant manager held 6/3/2023. ये वाली रिलीफ इनको दे दी गई, इनको 30% के आधार पे इनके रिजल्ट तैयार किया गया पिटिशनर का। नंबर 2, टू प्रोवाइड द पिटिशनर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर इन ईच पार्ट ऑफ द ओएमआर शीट। ये एग्जामिनेशन का जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इनको दिया जाएगा, इस संबंध में इनको सूचित भी कर दिया गया। फिर है टू डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 प्रोड्यूस द ओरिजिनल ओएमआर शीट फॉर द पेरूजल ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड कॉपी बी सप्लाइड टू दी पिटिशनर। ये भी हमने इनको कोर्ट के सामने पेश की थी तो कोर्ट ने इनको भी दिखा दी। फिर थर्ड है टू अलाउ द पिटिशनर टू पार्टिसिपेट इन द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू ऑर्डर से इनको सब्जेक्ट ओरिजिनली अलाउ करा गया कि आप इंटरव्यू में भाग लें। फिर फिफ्थ है फोर्थ वन डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 रेक्टिफाई द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ सेट बी एज पर द आंसर ऑफ द पिटीशन। तो इनका डिस्प्यूट तो केवल जो रिलीफ चाहिए केवल क्वेश्चन नंबर 28 के लिए है। ये कोई दूसरे पे 49 और 50 क्वेश्चन का जो रेस कर रहे हैं ये तो इनकी प्रेयर भी नहीं है। और इसमें जो 25 का ये रेक्टिफिकेशन चाह रहे हैं, ये इनका आंसर जो है गलत है। और मैं जो यस क्वेश्चन नंबर 41 और 50 यस के मार्क्स इनको नहीं दिए गए, नहीं दिए गए क्योंकि और अगर वो मार्क्स दे दिए जाए जी तो शी विल बी क्वालिफाइड। शी विल बी क्वालिफाइड। और वो इस तरीके के 29 कैंडिडेट्स हैं तो जिन्होंने गलत गोले करे थे या डबल गोला किया था। अब आज नहीं है ना OMR आपके पास? ओरिजिनल आज नहीं है सर। लिखिए श्री दिलीप सी सागर फॉर द पिटिशनर, श्री भुवन देशमुख फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1, श्री VP खरे फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 2। Considering the controversy involved in the present case, the respondent number 2 NRPSC, the respondent number 2 is directed to produce original OMR on the next date of hearing. List the matter on 10th January 2024. Yes.